Good morning, student. Good morning to all of you. Myself, Sailen Prasad Tiwari from Technocrats Institute of Technology. We are here to study the classification of crude drugs. Classification of crude drugs means if you understand that classification of crude drugs, firstly we have to understand what is crude drugs. Crude drugs are the drugs which are obtained from raw materials, either from plants or animal origin, to use in pharmaceutical products, including mineral origin also. Crude drugs are further grouped into organized or unorganized drug. Organized drug in which cellular structures are to be found. Example of organized drugs are roots, and unorganized drugs are non-cellular products. Organized drugs. Here are the difference between organized drugs and unorganized drugs. Organized drugs are the drugs which are obtained from plants and animals. Unorganized drugs are obtained from source of plant and animals, also in mineral origin. The organized drugs are produced directly from the above source. Unorganized drugs are the plants and animals obtain extraction, distillation. Means the process is important for that. Then organized drugs, they have cellular structures. Cellular structures means they are leaves, fruits, flowers, and cells are identified clearly, or woods. Or the unorganized drugs, they are well defined cellular structure like gum, mucilage, resins, which are to be obtained from plants. Then organized drugs, they are identified by morphological characters. Morphological characters means we have to touch these things to see that organized or unorganized. Unorganized drugs are organoleptic properties. Organized drugs are solid in nature, means they are a solid structure, cellular structures, and unorganized drugs are solid, semi-solids, or either in liquid in nature. Organized drugs are transverse sections used under microscope. If you study in microscope of organized drugs, then we can study these things under microscope. And unorganized drugs, the study of unorganized drugs in from optical rotation, viscosity, reflective index, chemical text. Example of organized drugs are Cusca, sandalwoods, leaves में digitalis. You know that digitalis is important for your hearts, and eucalyptus, mint, senna. And unorganized drugs are dried latex, मतलब opium, which is obtained from opium, pepin, and dried juice में aloe juice and quinone. Next, classification of crude drugs on the base of structural organization. Structural organizations में classifications are important. Then crude drugs are organized and unorganized. Organized में overgrounded organs मतलब herbs, leaves, flowers, fruits, seeds, bark and roots. Overgrounded organs means which are the plant parts which are over the ground, मतलब not in the inside the ground. And undergrounded organs are roots, rhizomes, bulbs and corona. Unorganized drugs में juices, latex, extraction, alkaloids, glycosides, tannins, resins, volatile oils, fixed oils, wax and gums and mucilage. First one alphabetical classification, second one taxonomical classification, third one morphological classification, fourth one chemical classification, fifth one pharmacological classification, and sixth one chemotaxonomical classification. Next we have to study separately about what the alphabetical classification. Alphabetical classifications mean alphabets. You have to study in class nursery, class first, second, third. A, B, C, D are the sequence of the alphabets. Okay? Firstly, you have to A, B, C, D. These are arranged on the Latin or English names alphabetically. Some of the pharmacopoeias are which are distinguished according to this: Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia, British Herbal Pharmacopoeia, British Pharmacopoeial Index, European Pharmacopoeia, and Encyclopedia is also important. Example is acacia, benzonin, cinchona, dill, ergot, phenol, gentian, hypogamus, jalap, purchi, licorice, nux vomica, opium, yellow bee wax, etc. These advantage of alphabetical classifications are scientific nature of the drug
cannot be identified through this method. Means you have to not identify the scientific nature of the drug, and the system does not help in distinguish the drugs of plant and animal and mineral sources. Example are acacia agar, beeswax, cinchona, digitalis, jala, etc. ठीक. Next is taxonomical classification. Taxonomical classification are the classification of drug according to plant from which they are obtained in phyla, orders, families, genera, species and subspecies. Like the animals classification, plant also to be classified as a taxonomical classification. This system of classification is characterized for its failure to recognize unorganized or organized drug in nature or chemical therapeutic effect. Example is, this is a family of sperm plant. Phylum Spermatophyta, division Angiospermi, class Dicotyledons, order Roselles, family Leguminosae, subfamily Papilionaceae and genus Glycyrrhiza, and species also Glycyrrhiza glabra and Astralaceae glabra. Next we have to study plant phylum Spermata, division Angiosperm, Dicotyledons and genus Atropa, species Atropa, Belladonna, Hygoworms. In this system of the drugs are arranged according to taxonomical studies. These are the phylum, order, family, genus. These are the sequence of the classifications. Next is morphological classification. Morphological classifications are the classifications of organized and unorganized, which we will study in back. The organized cells are these drugs. Here are the morphological classification. Drugs are arranged according to plant and the animal represent in organized cellular or uncellular structures. Uncellular मतलब unorganized structures. Organized cellular में drugs are obtained from plant are divided into roots, leaves, rhizomes, fruits, seeds, flower system here. Means organized drugs आप अच्छे से ये समझ सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते क्या हैं. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होते हैं, हिंदी में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होते हैं जिसे भी आप टच कर सकते हो, जिसके एक सेलुलर स्ट्रक्चर्स दिखते रहे, जिसको आप पता कर सकते, देख के भी पता कर सकते हो ये ऑर्गेनाइज्ड है अनऑर्गेनाइज्ड है. अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते हैं जैसे लेटेक्स, ये सेकेंडरी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के. दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंडरी पार्ट्स लाइक ड्राइड जूस, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, फैट्स, wool, volatile all animal products. Next advantage, this system of classification is more convenient for practical study, especially when the chemical nature of the drug is not classified. This type of classification is very useful to identify adult trends or used. And next disadvantage, it does not give an idea about biological source. Biological source are not identified in this method. When the different part of the plant contain different chemical structures, this will be classified according to the difficulties. Next one, morphological classifications में you can group into parts like which part of the plant this will be obtained, मतलब plant के किस parts से क्या चीज obtained होता है. जैसे बोलते हैं आप लोगों को बोलते हैं seeds में बोलते हैं जैसे कैस्टर, सरसों जो होती है कैस्टर बोलते हैं, वो सीड्स से होती है. नक्स भूमिका वो भी सीड्स से मिलती है. मतलब ऐसे रॉ मटेरियल जो हमें सीड्स से मिलते हैं, प्लांट पूरे प्लांट में जो उसकी सीड्स रहती है वहां से मिलते हैं. लीव्स जैसे सेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर्ट्स में काम आते हैं. डिजिटैलिस भी इंपॉर्टेंट है. वसाका, यूकेलिप्टिस, ये लीव्स से मिलते हैं. दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से मिलती हैं. एक पेड़ के सीड्स से मिलते हैं ये, और लीव्स से मिलते हैं सेना, डिजिटैलिस, वसाका. बार्क से भी कुछ मिलती हैं. बार्क मतलब होती है छाल, आप लोग जानते होंगे हिंदी में. छाल से हमें मिलती है. जैसे आप लोगों ने सोचा होगा किसी को सिनेमॉन चाहिए, सिंकोना चाहिए, ये ऐसी चीजें होती जो बार्क से मिलती है, जैसे हमारे हार्ट के लिए जरूरी होती हैं. छाल होती है. वुड मतलब लकड़ी से सैंडल वुड मिलता है, रेड सैंडल्स मिलता है, ये लकड़ी से मिलती है प्लांट के. रूट्स कुछ चीजें होती है जड़ से मिलती हैं. जड़ से हमें क्या मिलता है, राउल्फिया मिलता है, एकोनाइट मिलता है, जलाब मिलता है. ये सारे वो जो ड्रग्स हैं, रॉ मटेरियल्स, ये आपके फार्माकोग्नोसी लैब में अवेलेबल हैं. आप इनको जाके विजुअली भी देख सकते हैं, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस भी पढ़ सकते हैं, इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पढ़ सकते हैं और यूजेज, ये सारे इंपॉर्टेंट है. राइजोम्स, जैसे राइजोम्स में आप लोगों ने हल्दी देखी होगी, उसको टर्मेरिक बोलते हैं. ठीक है. जिंजर बोला होगा, ये जिंजर होती है आपकी. जैसे अदरक को आप लोग यूज करते हैं, तो ये कहां से मिलते हैं, ये राइजोम से मिलते हैं, नॉट रूट्स.
राइजोम्स एंड रूट्स में ये डिफरेंस रहता है कि रूट्स क्या होती हैं, नैरो होती हैं, राइजोम्स में एक फैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मोटे मोटे होते हैं, जैसे शकलकंद आप लोग खाते होंगे तो वो राइजोम से मिलता है। हल्दी को आप लोग देखा होगा, जड़ तो रहती है लेकिन वो थोड़ी थोड़ी फूली रहती है, तो वो क्या बोल देते हैं उसको, टर्मेरिक होती है, जिंजर होती है, ऐसे पोडोफाइलम रहते हैं। कुछ होते हैं हमें फ्लावर से मिलते हैं, जैसे लौंग। लौंग कहां से मिलता है, लौंग को बोलते हैं क्लोव। लौंग एक फूल है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन जीपेट में भी आया था, लौंग क्या है, तो लौंग क्या है, एक फूल है, उसको क्लोव बोलते हैं। तो ये फूल से मिलती है, लौंग फूल से मिलती है, सेफ्रॉन मिलती है, फूल से मिलती है। देन फ्रूट्स, फ्रूट से हमें कोरिएंडर, धनिया, जो धनिया आपने घर में यूज करते होंगे, वो कहां से मिलता है, वो एक फल है, नहीं वो फूल नहीं है, फूल तो ये क्लोव था फ्लावर्स में, वो फ्रूट्स कोरिएंडर है, फेनल है, बेल। बेल जो है वो आपका क्या है, एक फ्रूट है, ठीक है। इंटायर ड्रग, इंटायर ड्रग में यहाँ पे ये बोला गया है कि एक प्लांट जो इंटायर ड्रग से मिलती है, मतलब प्लांट के पूरे पार्ट से ही अवेलेबल होती है, फेड्रा अर्बोट, बेलाडोना। फिर ड्राइड लेटेक्स, कुछ ऐसे होते हैं जैसे पेड़ में आप लोगों ने पौधे में देखा होगा कि लेटेक्स निकलता है, गम से निकलते हैं, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, कुछ पेड़ों में निकलता है, तो वो क्या, वो चीज क्या होते हैं, वो चीज होते हैं ड्राइड लेटेक्स। ड्राइड लेटेक्स में ओपियम, जैसे अफीम होता है, जो अफीम की खेती होती है, तो अफीम क्या होता है, जब अफीम को निकाला जाता है तो एक स्पेचुला लगाया जाता है, कट लगाया जाता है, एक कट लगा के उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो लेटेक्स उसमें इकट्ठा होता है। तो ओपियम की खेती करने वालों को पता होगा कि उसमें कट लगा के अफीम निकलता है। जैसे गुटखा हो गया, पेपिन हो गया, पेपिन भी एक प्रकार का ड्रग्स ही होता है, ये सब ड्राइड लेटेक्स से निकलते हैं। रेजिन्स एंड रेजिन्स कॉम्बिनेशंस, बाल्सम ऑफ टोलू, एस्टाफोडिया एंड बेंजीन। ड्राइड जूस में क्या आएगा, एलोए आएगा, रेड गम्स आएगा, और गम्स चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपकाने काम आता है। गोंद जो आप लोग के यहाँ लाइब्रेरी में भी यूज होता है, कॉलेज में भी होता है, घरों में भी होता है, उसमें अकेसिया आएगा, ट्रेगाकैंथ भी आएगा, गम अगर भी आएगा, और अगर ड्राइड एक्सट्रैक्ट ड्राइड एक्सट्रैक्ट मतलब जो एक्सट्रैक्ट प्लांट से निकला है उसको ड्राइड करके क्या बनाया जाता है। कत्था आप लोगों ने खाते होंगे पान में, या आप लोग के पिताजी खाते होंगे, तो कत्था क्या आता है, कैटेचू यहाँ पे आता है। अगर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जेंसियन इज। नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन, जो ड्रग्स है उसको क्लासिफाइड अपन केमिकल में भी कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले अल्फाबेटिकल पढ़ लिया, अल्फाबेटिकल में एक सीक्वेंस होता है ए बी सी डी, जिसका नाम ए से आ रहा उसको ए में डाल दिए, जिसका बी में आ रहा बी से। फिर नेक्स्ट आया था अपना मॉर्फोलॉजिकल, फिर आया अब आ गया केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशंस में उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द सिस्टम, जैसे ग्लाइकोसाइड्स, हम कैसे बताएंगे ग्लाइकोसाइड्स है, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल नेचर। जैसे डिजिटलिस, सेना, इनका, अब ये क्या प्राप्त तो हमें दूसरे तरीके से होता है, मॉर्फोलॉजिकल में सेना लिप्स से हो जाता है, लिक्विराइज हमें लिप्स से नहीं होता, लेकिन ये सब क्या है, ग्लाइकोसाइड, जिसमें ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। देन नेक्स्ट वन अल्कलॉइड्स, नक्स, वोमिटा, अर्गोट एंड सिंकोना, धतूरा, जो धतूरा होता है वो अल्कलॉइड्स होता है। देन टेनिन्स में पेल, कैटेचू, अशोका। देन वोलेटाइल ऑयल, पिपरमेंट ऑयल, क्लोव, ये सब वोलेटाइल। गार्लिक जो लहसुन होती है वो वोलेटाइल ऑयल में आती है। लिक्विड्स, कैस्टर ऑयल, बी वैक्स, कोड लिवर ऑयल। देन कार्बोहाइड्रेट्स में अगर गम, पेंसिल, अगर पेक्टिन, हनी एंड रेजिन्स में आ जाता है जला, बॉल्सन ऑफ टलू। विटामिन्स में ईस्ट एंड शार्क लिवर ऑयल एंड हार्मोन्स, इंसुलिन। एंड प्रोटीन में आ जाता है जेंसियन, पेपिन एंड टिप्सिन। ये मेथड्स के क्लासिफिकेशन में थेरेप्यूटिक एंड फार्माकोलॉजिकल बेस्ड में भी केमिकल कंपोजिशन करते हैं। नेक्स्ट वन एडवांटेज ऑफ दिस इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नोन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं हमें पता होते हैं, ये एडवांटेज है। मेडिकल यूजेज आर नोन, अगर हमें इसे मेडिकल में यूज करना है तो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट वन डिसएडवांटेज में ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ऑरिजिन आर ग्रुप्ड अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स। इसमें डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, जो ड्रग्स हैं डिफरेंट ऑरिजिन की वो एक ही केमिकल टाइटल्स में आ जाती हैं, मतलब इसमें भी प्राप्त हो रही है, फ्लावर से भी हो रही है, फ्रूट से भी हो रही है, लेकिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होने के कारण वो क्या हो जा रहा है, वो एक क्लासिफिकेशंस में आ जा रही है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस में नो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द ड्रग containing two different type of chemicals। इसमें जो भी क्लासिफिकेशंस होगा, इसका बोलने का मतलब है कि वो दो जगह नहीं होगा, होगा तो एक ही जगह होगा, केमिकल नेचर होगा। अगर वो आइदर लीफ से प्राप्त हो, फ्रूट से प्राप्त हो,
पार्ट के प्लांट के किसी भी पार्ट से प्राप्त हो, लेकिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर उसका एक जैसा होगा तो वो एक ही सीक्वेंस में आएगा। एग्जांपल्स में सर्टेन ड्रग्स आर फाउंड इन कंटेनिंग अल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स, fixed oil, volatiles, oil and important, hence this is difficult to characterize these properties. Next one, pharmacological therapeutic classification. This is very important classification because you have a subject in fourth semester pharmacological classification, pharmacology. This one classification involved the grouping of the crude drug according to their pharmacological active drugs. Pharmacological active drugs मतलब active drugs are present in that portions or chemical matter. Example, drug acting on GIT. Many of the drugs which are categorized under GIT. bitter में जेंसियन आ जाएगा, क्यूस्टेरा आ जाएगा, सिंकोना आएगा, कार्बोनेटिव में आएगा डिल, मेंथा, कार्डिमोम, इमेटिक्स में आएगा इपेगुआ, एंड एंटी एमोबिक्स में आएगा कुर्ची आ जाएगा, बल्क लग्जेटिव में आएगा अगर, बनाना। These are the bulk luxative, purgative में आएगा एंड सेना एंड कैस्टोरॉल, एंड पेप्टिक अल्सर में आएगा डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लाइकोजेनिक एसिड एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन, ड्रग एक्टिंग और रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें क्या क्या यूज है, जैसे एक्सपेक्टोरेंट जो कफ जमा हो जाती है उसको बाहर निकालने के लिए काम आता है, तो उसमें क्या आएगा, लिक्विडाइज आ जाएगा, आप ले सकते हैं, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में आएगा। और आपका वसाका, ये एक्सपेक्टोरेंट होता है, देखा होगा कभी कभी कफ हो जाती है, कफ को निकलती नहीं गले में, तो वो कफ के लिए। एंटी टिश्यू, अगर किसी को ज्यादा कफ बन रहा हो तो उसके लिए ओपियम आ जाता है, ओपियम ले लो या कोडीन ले लो, कोडीन मार्केट में आता है, सिरप्स में भी रहते हैं, तो वो लेने से क्या होता है, जो कफ का फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। एंड ब्रोंकियोडायलेटर्स, ये भी रिस्पिरेटरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को सांस लेने में दिक्कत आती है तो बोलते हैं सांस लेने में दिक्कत आए तो ब्रोंकियोडायलेटर्स आर डायलेट द वेसल्स। एग्जांपल में आगे इफेड्रा एंड टी, आप सांस चाय पी लीजिए या इफेड्रा ले लीजिए, उसमें चाय में होता है, तीन होता है थियोफाइलिन चाय में होता है, जो कि पीते ही हमारा ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर देता है। नेक्स्ट वन है ड्रग एक्टिंग ऑन सीबीएस, इसमें क्या आएगा, कार्डियोटॉनिक्स देखिए हार्ट, ये चारों चीजें हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट कैसे, अपना हार्ट कार्डियोटॉनिक, किसी का हार्ट कमजोर रहता है, वो जो साउंड्स होती है, जो उसकी बीट्स होती है वो कमजोर रहती है, तो कार्डियोटॉनिक्स डॉक्टर्स देते हैं, तो इसमें डिजिटलिस आता है, स्क्विल आती है, ये क्या करती हैं, उसको हार्ट को मजबूत करती हैं, जो उसकी वाल्स होती हैं उनको क्या करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, कार्डिक डिप्रेसेंट, किसी की हार्ट रेट बहुत तेज चल रही है तो उसके लिए कार्डिक डिप्रेसेंट दे रहे हैं, सिंकोना हो गया है और वर्टुअम हो गया। देन वेसोकंस्ट्रिक्टर, वेसल्स जो कंस्ट्रिक्ट हो गई किसी की तो वेसोकंस्ट्रिक्टर्स दिया जाता है अर्गोट। देन एंटी हाइपरटेंसिव में जो ज्यादा हाइपरटेंसिव हो गया है तो उसके लिए क्या किया, एंटी हाइपरटेंसिव राउल्फिया है, उसको नॉर्मल करने के लिए राउल्फिया यूज होता है। देन ड्रग एक्टिंग इन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी ये इंपॉर्टेंट है, एड्रेनर्जिक में इफेड्रा, सिंकोनर्जिक में पिलोकार्पस हो जाएगा, एंटी कोलिनर्जिक में होगा धतूरा। देन ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगा सीएनएस में क्या इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एनाल्जेसिक में ओपियम हो जाएगा, सेंट्रल स्टिमुलेंट्स में कॉफी हो जाएगा। सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, कॉफी आप लोग पीते होंगे तो आप लोग का क्या होगा, सीएनएस को स्टिमुलेट कर देता है। देन एनालेप्टिक्स में नक्स भूमिका हो जाएगा, देन सीएनएस डिप्रेसेंट में आ जाएगा, बेलाडोमा आ जाएगा, ओपियम आ जाएगा, हेलुसिनोजेंस में आ जाएगा पॉपिलिटेक्स ऑफ कैनाबिस। नेक्स्ट, ड्रग एक्टिंग ऑन एंटी स्पास्मोडिक्स में आ जाएगा, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन में आ जाएगा ओपियम, धतूरा, स्केलेटन मसल रिलैक्सेशन में आएगा प्यूराकेर, एंड एंटी कैंसर। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ गया ये जो एंटी कैंसर, एंटी रोमेटिक्स, जो अपने पैरों में प्रॉब्लम होती है उसके लिए एस्ट्रिजेंट्स होते हैं जो अपने को वो करते हैं। तो एंटी कैंसर में आ जाएगा, कैंसर से जो बचाते हैं, आप विनका खाइए, टेक्सस लीजिए, ये क्या होते हैं, एंटी टेक्सस होते हैं, एंटी कैंसर होते हैं। देन एंटी रोमेटिक्स में एकोनाइट होता है, सिंकोना गूगल में होता है, एस्ट्रिजेंट्स होते हैं, एस्ट्रिजेंट्स में आएगा माइलोबेन, ब्लैक कैटेचू, etc. जैसे कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इन दिस ट्रोपेन अल्कलॉइड्स आर जनरली occur in most of the member of solanaceae families. Example, volatile oil occurs in the member of, then thank you.